everyone, welcome to GeoIAS. Today we will be dealing with Directive Principles of State Policy Part 2. In the previous video, I have already covered with you Article 36, which also carries this definition of state, just like Article 12 and Part 3 of the Constitution. We had discussed Article 37, which told us that the directive principles are not enforceable by nature, and the directive principles are also binding on the government. So we understand by this that the directive principles hold the same definition for state just as the fundamental rights do. They are non-justiciable in nature, they are non-enforceable in nature, and they are also binding on the government. This we have understood by till Article 37. So Article 36 and 37 tells us about the nature of the directive principles of state policy. After that, we had understood that the directive principles are divided into three heads. One is the socialistic principles. Then we had the Gandhian principles. And then we have liberal intellectual principles. We've already discussed some of the socialist principles and some of Gandhian principles as well. Okay, so now let's go forward. So we had discussed Article 38 as well, which spoke about the welfare of the citizens. It spoke about giving justice. It spoke about giving justice to all people, social, economical, and political, just as it was enshrined in the preamble. We had also understood how Article 38 subclause 2 was inserted by the 44th Constitutional Amendment Act by the Morarji Desai government, and it actually legalized the IT raids and the confiscatory raids that the government carries out from time to time. Article 39 was dealing with socialist principles. That is, it sought to give men and women equality and to give them adequate means of livelihood. It was dealing with the establishment of it was against the concentration of wealth with a particular individual. So it also gave forward the concept of Competition Commission of India, and it actually stopped unfair trade practices. It avoided any company from having monopoly. After that, we saw that it also deals with labor welfare, and along with it, Article 24, that is to prevent children from exploitation, and the POSCO Act was made on its regards. We've also seen that fundamental rights, Article 17, Article 23, and Article 24, have got laws which have their background and which have their directives given from the directive principles of state policy to the government. Then we moved forward to Article 39A. Now, Article 39A was introduced by the 42nd Constitutional Amendment Act by Indira Gandhi. So, initially we had seen that in between Article 20, 21 and 22, the right to lawyer as per the principles of natural justice only dealt with the right to lawyer in case of criminal cases. But Article 39A has given us what is known as the NALSA, the National Legal Service Authority Act. Now, this NALSA Act is actually in 1987 was actually made, and what it actually did is it gave both civil and criminal aid. But that is, in case you are in a civil case, either you are in a criminal case, and if you are poor, the government will now give you a free lawyer, someone to represent your case for you. After that, we had discussed Article 40, that dealt with the Gandhian principles. It spoke about organization of village panchayats, and which gave rise to the 73rd Constitutional Amendment Act, which helped us organize village panchayats in India. It also made us understand about what Gandhiji wanted from us, and it spoke about what is known as proximate transfer of power. Now, after this, we went to Article 41, 42, and 43, and we discussed we saw that the word right is directly mentioned in these directive principles of state policy. We understood that through this, the government has made and created many initiatives for many people who have been unemployed, like giving the unemployed in the rural places MNREGA. Similarly, when you're old and when you're sick, you're supposed to get retirement, you're supposed to get pension, you're not supposed to work anymore. In case
in case you are someone who actually requires some other amount of thing. For example, if you're a farmer, the government would give you a pension scheme, they would give you a bima, a fasal bima, and something like that, so on and so forth. We had also discussed about the Olga Tellis versus the Bombay Municipal Corporation case of 1986, and the Gurchan Kaur case, which said that everything that the state gives depends on its own economic capacity and its availability. Now we need to go forward and understand what Article 42 does. So we've already discussed Article 41 here, and we'll move forward to Article 42 in the next slide. Now let's read Article 42. अब Article 42 ये बोलता है, देखिए Article 41 हमें right to work देता है, right? It gives us right to work. ये बोलता है कि जो भी इंडिविजुअल है और जो इंसान काम कर रहा है उसे गवर्नमेंट भी सप्लीमेंट करेगी. अब आर्टिकल 42 ये बोलता है कि भाई मैं काम तो करूंगा, बट मुझे कंडीशंस, जिस तरह से मैं काम करता हूँ वो कंडीशंस मेरे ह्यूमेन होने चाहिए. यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे एकदम गंदे से जगह पे, जहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं हो, जहाँ कोई फैन नहीं हो, जहाँ कोई लाइट नहीं हो, आप किसी को वहां पे काम करने के लिए फोर्स करो. इसीलिए आर्टिकल 42 ने बोला कि स्टेट को ये मेहनत करना पड़ेगा कि जितने मेरे इंडिविजुअल्स हैं सबके जो कंडीशंस ऑफ वर्क है वो बहुत आराम होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि हम लेबर वार्ड्स बनाएं, राइट, जहां पे लेबर जो है अपना काम करने के बाद थोड़ी देर जाके रेस्ट कर सकते हैं. अगर किसी इंडिविजुअल ने लेबर वार्ड्स नहीं बनाया है किसी एरिया में, किसी कंपनी में, गवर्नमेंट उस कंपनी को पिनलाइज करे. गवर्नमेंट ने ऐसी चीजें की हैं कि जिस एरिया में आप एक इंडस्ट्री सेटअप करते हो या आप एक फैक्ट्री सेटअप करते हो जहाँ पे वर्कर्स आके रहेंगे, उस एरिया के आसपास आपको सैनिटेशन देखना पड़ेगा, आपको क्लीनलीनेस देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लोग जो है वो वहां पर ठीक तरीके से बच सके. आपको टाइम टू टाइम लोगों को ब्रेक टाइम देना पड़ेगा. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को अपने कंपनी में बुलाओ और आप उसे दिन में 14 घंटे या 15 घंटे काम करो, राइट. तो पहले क्या था कि अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आप काम करना चाहते हो, आपको उन्हें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ेंगे. यू हैव टू गिव देम अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स. और ये जो फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स है ये भी डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा. आपको कम से कम इन लोगों को 1 आवर का लंच टाइम या 1 आवर का इवनिंग में ब्रेक टाइम देना पड़ेगा. आई एम जस्ट गिविंग अ नंबर, ऐसे तो बहुत वेरिएबल होते हैं ये चीज. तो आपको उन लोगों को मिनिमम 1 आवर ऑफ ब्रेक टाइम देना पड़ेगा. इसके बाद आप जहां पर भी इन्हें काम करवाते हो उस एरिया में प्रॉपर वेंटिलेशन होना पड़ेगा, राइट. बाय वेंटिलेशन, अगर एरिया बहुत ही ज्यादा गर्म है, इट्स वेरी वेरी हॉट, आपको यहाँ पर एसी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 100-150 लोग काम करने वाले हैं और इन 150 लोगों का कंडीशंस आपको चेक करना पड़ेगा एज अ पर्सन. आपको टाइम टू टाइम इन लोगों को उनको टी एंड स्नैक्स देना पड़ेगा, यानी कि इन्हें रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा. यू हैव टू गिव देम समथिंग टू ईट. दिस इज व्हाट आर्टिकल 42 इज मैंडेटिंग ऑन मेनी कंपनीज दैट यू सी अराउंड द वर्ल्ड. आप नॉर्मली देख सकते हो इसे कि जैसे अगर आप अपने ऑफिस जाते हो, आपको एक फिक्स जैसे कि 8 आवर्स काम करना पड़ता है, मैंडेटरीली आपको 8 आवर्स काम करना पड़ता है. इसके ऊपर अगर आप काम करते हो आपको ओवर टाइम पे किया जाएगा, राइट. आप जिस तरह से काम करते हो, जिस वर्क प्लेस में काम करते हो, वो एरिया को बहुत ही ज्यादा क्लीन रखते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एकदम क्लीन रखते हैं. एक प्रॉपर स्वीपर रहता है, एक प्रॉपर पर्सन रहता है जो इन चीजों को पूरा अच्छी तरीके से साफ कर देता है. व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन मैंडेटेड बाय आर्टिकल 42 कि अगर कोई इंडिविजुअल आपके यहाँ काम कर रहा है, आपको अपने ऑफिस को स्पिक एंड स्पैन या अपने वर्क प्लेस को बहुत ही ज्यादा क्लीन करना पड़ेगा. ओके. आपको एक इंडिविजुअल को मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी. यानी अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है, ओके, शी इज प्रेग्नेंट, एंड आप उसे बोलते हो, अब वो समझ लो, आप उसे बोलते हो 9 मंथ में कि आप 10 दिनों भी अपने बच्चों आप अपने बच्चे का बर्थ के टाइम यू कैन नॉट टेक एनी हॉलीडेज, आई विल फायर यू इफ यू टेक हॉलीडेज. तो ये आपको करना अलाउ नहीं है. आप ये भी नहीं कर सकते कि एक लेडी जो प्रेग्नेंट है आप उसे काम से भी नहीं निकाल सकते, बिकॉज शी इज गिविंग बर्थ थ्रू लाइफ. और उसके साथ साथ यू हैव टू गिव हर सम डेज फ्री. आपको उन्हें कुछ दिनों तक पेड लीव देना पड़ेगा बिकॉज शी इज गिविंग बर्थ. तो एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फिक्स करती रहती है, इतना दिन आपको उन्हें फ्री देना पड़ेगा ताकि शी गिव्स बर्थ, खुद को भी हील कर पाए और उसके बाद वो आराम से काम पे वापस आ पाए. तो इट हैज बीन क्लियरली मेंशन इन आर्टिकल 42 as I'm reading for you. The state shall make provisions. The state shall make provisions for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. This is what Article 42 covers. Now let's go to the next article.
अब सुनिए, आर्टिकल 41 मुझे ये बोलता है कि मेरे पास राइट टू वर्क है. आर्टिकल 41 टेल्स मी दैट आई हैव राइट टू वर्क. आर्टिकल 42 टेल्स मी दैट आई वांट ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क. ठीक है, मेरे वर्क कंडीशंस के साथ डील करता है. और आर्टिकल 43 मुझे ये बोलता है कि भाई मुझे प्रॉपर वेजेस दो, गिव मी प्रॉपर वेजेस प्लस वेकेशन. अच्छा, आई एम श्योर मेनी ऑफ अस हैव हैड दिस थिंग. आपको अगर याद है, हमारे दादा दादी रहा करते थे और अक्सर जब हम कोई चीज बाहर से खरीद के लाते थे, हमारे दादाजी हमारी दादी जी बोलते होंगे कि उस टाइम पे मेरे टाइम में ये जो ब्रेड तुम 10 रुपए, ये ब्रेड जो तुम लोग 30 रुपीज का लाते हो ना, ये मेरे टाइम में 30 पैसे में मिलता था. वी यूज्ड टू बाय दिस फॉर 30 पैसा. बहुत ही ज्यादा चीप रहा करता था और ये चीजें जो हैं हम बहुत ही ज्यादा चीप में खरीदते थे. तो अक्सर ये बात आपने सुना होगा. क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई टाइम टू टाइम हर चीज का प्राइस चेंज होता रहता है. तो जो लाइफ जीने के लिए इनिशियली हो सकता था कि दादाजी की फैमिली को अगर 100 रुपीज मिलता होगा तो वो बहुत आराम से अपना लाइफ चलाते होंगे. बट क्या हम इस 100 रुपीज से आज के डेट में अपना मंथली एक्सपेंसेस चला सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ आर्टिकल 43 इज प्रोटेक्टिंग अस. तो आर्टिकल 43 बोलता है that the state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization to all workers, agricultural, industrial, or otherwise, a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social activities and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or a cooperative basis in rural India. So let's do part 1. Okay, सबसे पहले part 1 समझते हैं. जैसा मैंने आपको बोला, मुझे भाई एक लिविंग वेज आपको देना पड़ेगा. यू आर इन एनी इंडस्ट्री, आप एग्रीकल्चर में हो, आप इंडस्ट्रियल में हो, या आप ट्रांसपोर्ट में हो, या आप आईटी में हो, वी डोंट केयर. आप जो सैलरी दोगे अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, वो सैलरी एक लिविंग वेज होनी चाहिए. यानी कि आपको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, नॉट अ वेरी हाई फाई, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो आपको देगी. फॉर इसीलिए इस चीज को इंश्योर करने के लिए आप देखोगे कि पे कमीशंस आज बने हैं. यू मस्ट बी सीइंग कि आजकल पे कमीशंस बने हैं. आप अक्सर सुनते होंगे फर्स्ट पे कमीशन, सेकंड पे कमीशन, थर्ड पे कमीशन. तो ये सारे पे कमीशंस क्यों बनते हैं? ताकि ये इंश्योर कर पाए कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ किस तरीके से काटा जा सकता है और एक मिनिमम लिविंग वेज क्या होता है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट किसी इंडिविजुअल को सैलरी देना पे कमीशन का, या सैलरी अलॉट करना पे कमीशन का काम बनता है. आफ्टर दिस जो सेकेंड पार्ट अगर आप रीड करो, they should fully enjoy leisure and social and cultural opportunities. So हमने आर्टिकल 42 में उनको ये बात बोल दी कि भाई हमें ह्यूमेन कंडीशंस चाहिए, आपको मटर्निटी रिलीफ देना होगा, आपको मुझे दिन में ब्रेक्स देना पड़ेगा, आपको मुझे फ्रॉम टाइम टू टाइम मुझे चाय पानी नाश्ता पिलाना पड़ेगा, यानी कि आपको मुझे रिफ्रेशमेंट देने पड़ेंगे. और उसके बाद आर्टिकल 43 में हम एक रेड लेटर वर्ड, हम उन्हें एक रेड लेटर डेज बोलते हैं. ठीक है, वी टेल द कंपनी कि आपको रेड लेटर डेज देना पड़ेगा. रेड लेटर डेज मतलब यू विल हैव टू गिव मी टाइम फॉर अ वेकेशन. तो आप देखते होंगे आपके ऑफिसेज में, जैसे आपको कंपनी ने बोला है जाइए आप आपके कुछ कैजुअल लीव्स होते हैं, कुछ पेड लीव्स होते हैं, कुछ नॉन पेड लीव्स होते हैं. तो ये लीव्स आपको कैसे मिल रहे हैं? वाई इज द कंपनी गिविंग इट टू यू? प्राइवेट कंपनी क्यों आपके पीछे मेहनत करेगी? द रीजन इज दैट इट इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 43 कि इंसान के अपने मेंटल हेल्थ के लिए, इंसान के सोशल एंड कल्चरल हेल्थ के लिए आपको उन्हें लीव देना पड़ेगा. दिस हैज बीन इम्प्लिसिटली written in article 43. article 43 में implicitly ये चीज लिखा हुआ है. Finally, the last part of this article, the state shall endeavor to promote cottage industries. नहीं. And finally, the only part that is left over here is that cottage industries have to be promoted
ये जो आप अक्सर सुनते होंगे ना, खादी, द खादी इंडस्ट्री, जो आप देखते होंगे कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटन मिल्स है, ये सारे मिल्स को बेसिकली एक प्रॉपर तरीके से इम्पेटस दिया जाता है. The reason why banks are giving loans to these cooperative companies in rural areas is because government ने ये article 43 में बनाया है, and they actually give people benefits whenever they give these banks benefits whenever they were financing any form of cottage industries in India. All right, now we'll go on and we'll understand what article 44 is saying to us. So till now we've already discussed article 30, 36, 37, 38, 39, article 39A, article 40, article 41, article 42 and article 43. So now we are going to discuss article 44. Now guys, before going into the details of article 44, I want you to keep one thing in mind, that this article is a very debated article. It is a highly debated article. So we will try to understand it through a certain case that I have seen in my that I know about. Okay, so we're going to understand it in that light. Now let's start and jump into article 44 of the Directive Principles of State Policy. Now article 44 looks to be a very simple article. Let's read it. Now the state shall endeavor to secure for all the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. The state shall endeavor to secure for its citizens, a uniform civil code throughout the territory of India. Okay. Now, what is uniform civil code? Let's understand that. It's been in limelight for quite some time now, and let's understand that. Now, when I'm talking about, I'm talking about the law in a country. There are laws. There are two types of laws. One is a criminal law. One, we have a criminal law, and on the other hand, we have civil law. Now, I'm sure आपको ये तो पता होगा ना कि इंडिया में अगर एक हिंदू एक मर्डर कर देता है तो हम उसे एक ही आर्टिकल से हम उसे प्रोसिक्यूट करते हैं. सिमिलरली अगर कोई मुस्लिम एक मर्डर कर देगा, राइट, हम उन्हें भी उसी लॉ से एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. हम उनके ऊपर वही आपका सेक्शन 320 लगाएंगे. हम यही बोलेंगे कि इन्होंने मर्डर किया है और उसके तहत जो हमारे कोर्ट्स है उन्हें ट्राई करेंगे. So we can understand, and in the same way, like if we have more of Sikhs, Jews, Christians, अगर किसी ने भी एक तरह का क्राइम किया है, all of them will be punished by law. ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ हिंदू, हम आपको मनुस्मृति के हिसाब से मारेंगे, हम आपको आई फॉर एन आई बोलेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम इस्लामिक लॉज के हिसाब से उनके लिम्स को टेयर ऑफ कर देंगे. सो इट्स नॉट लाइक दैट. तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है इंडिया में, दैट लॉ इज कंप्लीटली यूनिवर्सल इन नेचर. Okay, it's completely universal. It is applicable to all the citizens who stay within the territory of India. अब समझ लीजिए, अब आते हैं सिविल लॉ पे. इंडिया में सिविल लॉ इज नॉट यूनिवर्सल बाय नेचर. इट्स नॉट यूनिवर्सल. ठीक है, इट्स नॉट यूनिवर्सल इन नेचर. अब चलो मैं आपको एक केस बताती हूँ जो आपका जो क्लैरिटी करेगा, ये बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी कर देगा आपकी अबाउट द लॉज इन इंडिया. अब एक क्वेश्चन आता है, इंडिया में सपोजिवली देयर इज अ मैरिड मैन. ओके, तो हमारे क्रिमिनल सीआरपीसी के तहत, ओके, अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी सेक्शन 125, एनी मैन, यू कैन राइट इट लाइक दिस, एनी मैन हु इज केपेबल ऑफ अर्निंग, कोई भी ऐसा इंसान है जो अर्न कर रहा हो, ओके, एनी मैन जो अर्न कर रहा हो, उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, इट सेज कि कोई भी इंसान जो अर्न कर रहा है उसे तीन कैटेगरी के लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा. एक, ही हैज टू मेंटेन हिज वाइफ. टू, ही हैज टू मेंटेन हिज माइनर चिल्ड्रन, मतलब उनके जो बच्चे 18 साल से कम की उम्र के हैं उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा. और इसके बाद ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज एजिंग पेरेंट्स, मतलब उनके बूढ़े होते हुए पेरेंट्स को उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा. दिस हैज बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड in section 125 of the CRPC, which is the criminal procedure code. Okay, चलिए अब थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं. Now try to understand. There was a particular case which had happened in India, which is known as the Shahbano case. I'm sure many of us have heard about it. Now in the year 1932, you know,
देयर वाज अ लेडी जिनका नाम था शाबानो. Now Shabano was married to Mohsin Ali Khan. Okay, she was married to a man who was known as Mohsin Ali Khan, and she was married to him. Very good. अब जब इनकी शादी हुई थी, ठीक है, इनके ऊपर लगा था मुस्लिम मैरिज एक्ट. ओके, द मुस्लिम मैरिज एक्ट, द शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1932. ठीक है, they were married according to the Shariat laws. Shariat Application Act of 1932. Now what happened? A few years later, मोहसिन अली खान ने क्या किया, जब शाबानो काफी बूढ़ी हो गई थी, उन्होंने क्या किया कि he got married to a very young girl, and in time, and initially शाबानो and that girl used to stay in his own house. इनके खुद के घर पे शाबानो को लेकर और अपनी सेकंड वाइफ को लेकर वो रहा करते थे. ठीक है, अब क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अकॉर्डिंग टू द शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1932, okay, according to the Shariat Application Act of 1932, it has been clearly said, एकदम क्लियरली बोला हुआ है कि आपको शादी आफ्टर डाइवोर्स, इन केस ऑफ डाइवोर्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इन केस ऑफ डाइवोर्स यू शुड नॉट पे एलिमनी. यू शुड नॉट पे एलिमनी. तो मोहसिन अली खान ने शाबानो को कोई पैसे नहीं दिए. he did not give her any money. Now since he did not pay her any money, शाबानो बहुत परेशान हो गई. She was not educated, बच्चे थे उनके. अब इसकी वजह से उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी. So शाबानो went to what is known to the इंदौर हाई कोर्ट. ओके, और इंदौर हाई कोर्ट ने उन्हें बोला कि भाई शरीयत लॉ के हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, तो आपको एलिमनी नहीं मिलेगा. अब शाबानो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई. आफ्टर दिस शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होते होते इट वेंट टू व्हाट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस केस की सुनवाई करना स्टार्ट कर दी. अब मोहसिन अली खान वेंट टू कोर्ट एंड ही सेड, सर आई एम नॉट रॉन्ग. इंडिया में, अब बाय द वे मोहसिन अली खान वाज आल्सो अ लॉयर, तो उन्होंने बोला, सर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. मेरे कानून के तहत, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम मैरिज एक्ट, according to the Shariat Application Act of 1932, I have divorced her, and इस divorce के बाद I have given her an amount which is known as the मेहर amount. हम इसे मेहर बोलते हैं, देन मेहर. सो यू मस्ट हैव हर्ड, राइट, कि जब भी मुस्लिम वेडिंग्स होते हैं वहां पे बोला जाता है कि लेडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, राइट, दैट अमाउंट इज नोन एज मेहर. तो उन्होंने बोला कि मैंने तो इनका मेहर जो है वो मैंने इन्हें दे दिया है, और अकॉर्डिंग टू माई लॉ आई एम नॉट सपोज टू पे हर एलिमनी, सो व्हाई शुड आई पे एलिमनी टू हर. मैं उन्हें कोई एलिमनी नहीं दूंगा, मैं तो अपने हिसाब से आया हूँ. आप इंदौर हाई कोर्ट का पढ़ लीजिए ना सर. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है. सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है. उन्होंने बोला, अच्छा तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का बहुत शौक है, आओ चलो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो. ओके, आओ चलो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आप शरीयत कहाँ से आया है? टेल मी वन थिंग, वेयर हैज द शरीयत कम फ्रॉम? आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट जजेस हैव सेड, सो मार्क मी वेरी केयरफुली. आपने ये लॉज कहाँ से निकाले हैं? तो बहुत सारे जो आपके ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के लोग थे, वो लोग वहां पर आए. पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग थे वो सब आए थे, एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि हाँ भाई क्यों हमें देगा, हमारे कानून के हिसाब से एलिमनी नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, हम लड़कियों को सिर्फ मेहर देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आइए पढ़ते हैं शरीयत आया कहाँ से है. आई एम प्रीटी श्योर ये जो आया है ये कुरान से आया है, राइट? तो सबने बोला हाँ भाई सब तो कुरान से आया है. तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक काम करिए, चलिए हम सूरा पढ़ते हैं. तो अ पार्ट ऑफ द कुरान विच इज नोन एज द सूरा, तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन सूरा 241 एंड सूरा 242 it is clearly written that a man should take care of his woman. A man should take care of women. इसमें ये लिखा है कि उनकी जो वाइफ्स रहें, जो उनकी एक्स वाइफ्स रहें, जो उनकी बेटियां रहें, उनकी माँ जो रहे, उनका एक मर्द को ख्याल रखना चाहिए. तो ये सुनकर मोहसिन अली खान ने बोला कि हाँ सर, ये तो हमारे बुक में जरूर लिखा हुआ है, हमें मेहर के बारे तो डेफिनेटली बोला गया है,
और इस मेहर के तहत और हमें ये तो बोला गया कि हमें अपनी औरतों को ख्याल रखना चाहिए सर, इसीलिए आई हैव गिवन शाहबानो द मेहर दैट वाज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैंने उनको वो मेहर की अमाउंट दे दी है एज पर माय शरीयत लॉज। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आओ फिर पढ़ाते हैं तुम्हें, मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ। देखो मेहर जो होता है ना शरीयत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कुरान, दे आर टू टाइप्स ऑफ मेहर। एक मेहर होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट मेहर। प्रॉम्प्ट मतलब जैसे ही शादी होती है जो आदमी होता है वो अपनी न्यूली वेडेड वाइफ को ये अमाउंट दे दे एंड दैट वुड बी द प्रॉम्प्ट मेहर, दैट वुड बी द प्रॉम्प्ट मेहर। और इसके बाद आपके पास आएगा व्हाट इज नोन एज डेफर्ड मेहर। ठीक है, और डेफर्ड मेहर का मतलब है कि अभी मेरे पास मीन्स नहीं है ये अमाउंट आपको देने का, बट मैं फ्यूचर में आपको विद इन अ मैरिटल लाइफ मैं आपको ये अमाउंट दे दूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली सर यही मतलब है, बट आप बोलना क्या चाहते हो, मैंने तो उनको डेफर्ड मेहर तो दे ही दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप शायद जानते नहीं है कि मेहर का मतलब क्या है। सिंस यू आर अ पर्सन, यू आर अ लॉयर एंड यू फॉलो शरीयत लॉज, प्लीज रीड द कुरान वेरी केयरफुली। द मेहर is actually the amount which is given to the woman for her usual maintenance. उनके यूजुअल मेंटेनेंस के लिए उन्हें एक अमाउंट दिया जाता है कि आप इससे अपने यूजुअल एक्सपेंसेस को निभा लें। ओके, नाउ दिस अमाउंट इज यूजुअली टोल्ड टू द वुमन कि इतना अमाउंट तो आपको देंगे ही, आपकी शादी होगी इनके साथ तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको हम पैसों के लिए तड़पा देंगे, इतना पैसा तो हम आपको जरूर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू द शरीयत एंड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, giving alimony and maintaining your wife is absolutely mandatory as per the Quran and as per the Shariat laws. That is why आपको इन्हें अपनी वाइफ को एलिमनी देना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये समझना होगा that you are a citizen of India, right? You are an Indian citizen, and in case you are an Indian citizen, you have to read section 125 of the CRPC, right? You have to read section 125 of the CRPC. Now section 125, what is CRPC? It is the criminal procedure code. और criminal laws जो है वो तो इंडिया में यूनिवर्सल है ना, that is universal. आप ये तो नहीं बोलते कि भाई शरीयत के हिसाब से अगर आप चोरी करते हो तो आपके हाथ काट दिए जाए, मगर इंडिया में हम आपके हाथ तो नहीं काटते। तो आप वो लॉ एक्सेप्ट कर ले रहे हो बिकॉज दैट इज मोर एक्सेप्टेबल टू यू, और आप ये लॉ नहीं मान रहे हो बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दैट इज द रीजन कि ये किया गया है कि अगर एक आदमी इज एन अर्निंग एज, दैट पर्सन हैज टू टेक केयर ऑफ हिज वाइफ, हिज माइनर चिल्ड्रन एंड हिज एजिंग पेरेंट्स। उनको तीनों की ख्याल रखनी पड़ेगी एंड इट हैज बीन मेड पनिशेबल बाय लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राउंड, सिंस आप बाकी सारे क्रिमिनल लॉज को इंडिया में मान रहे हो, दिस इज ऑल्सो द लॉ दैट यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू नाउ हैव टू गिव alimony to your wife. तो Muslims में it was made legal that you can have alimony now. So this was a case which was very highlighted in the Shabano case. Okay? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आई एम वेरी श्योर आप सबको पता होगा that during the time of Rajiv Gandhi, जब ये शाबानो का केस बहुत ज़्यादा चल रहा था, somewhere in the year 1985, it was very bad in that year. अब इसका रीज़न क्या था देखिए, उस वक्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ओके, एंड राजीव गांधी जी जो थे with no politicization of this, used to follow what was to follow a principle which was known as Muslim appeasement. यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स को वो हमेशा अपीज करके रखते थे, और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मेंबर्स थे दे वर वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स मोहसिन अली खान। ओके, तो ऑब्वियसली अब राजीव गांधी को अपने इस अपीजमेंट थ्योरी की वजह से इस मैटर का पॉलिटिसाइजेशन कर दिया। ही एक्चुअली इट वाज रियली पॉलिटिसाइज्ड, बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो गया। There was a lot of politicization of this matter. अब देखिए, अब इन्होंने बोला कि भाई किसी ना किसी तरीके से हमें इस मैटर को जो है बाईपास करना पड़ेगा, हमें इस मैटर को जो है बाईपास करना पड़ेगा, और इसे बाईपास करने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया। ओके, द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम विमेन राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट। द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम विमेन राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1986। इसमें ये जो पूरा एक्ट था ना, ये टेक्निकली इसलिए बना था
ताकि ये सुप्रीम दिस एक्ट was framed because ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट को था बाईपास करने की कोशिश कर रहा था. इट वॉज ट्राइंग टू बाईपास द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. एंड इसमें एक बहुत फनी फीचर है. कोई भी एक्ट जब बनता है, whenever there is any act which comes out in the constitution, आप ये देखोगे कि वो एक्ट ना यूजुअली बहुत सारे पब्लिक इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स को लेके बनता है. दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब जुडिशरी को डायरेक्टली टारगेट करते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट को पास किया था. इसका पहला लाइन में ये था, द फर्स्ट लाइन ऑफ द जजमेंट रेड, in light of the Shabano judgment. In light of the Shabano judgment. So guys, do you realize कि ये जो हमारा जजमेंटल पोजीशन उठा था, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट आया था, डू यू रियलाइज कि ये औरतों का राइट प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था. ये जो राइट था वो एक तरीके से मुस्लिम विमेन का एलिमनी राइट्स ले रहा था. कैसे? इन्होंने बोला कि परफेक्ट, आप लोगों ने बोला है ना एलिमनी देना है, आप लोगों ने बोला है ना कि एलिमनी देना है, एलिमनी दिया जाएगा. क्यों नहीं दिया जाएगा? लेकिन ये सिर्फ उस टाइम तक दिया जाए, सिर्फ 90 डेज तक आप देंगे. तो 90 डेज कैसे सर, एंड व्हाई 90 डेज? क्योंकि इन 90 डेज के लिए द वुमन प्रैक्टिसेस व्हाट इज नोन एज इद्दत. देखो, मुस्लिम इन अ मुस्लिम मैरिज इट इज यूजुअली सेड दैट जब भी आप अपना मैरिज ब्रेक करते हो या अगर एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, दैट लेडी हैज टू प्रैक्टिस इद्दत. यानी कि वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 months तक किसी भी बाहर के आदमी से या किसी भी इंडिविजुअल से मिल नहीं सकती हैं. ओके, सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So what I try to tell you through this is that the Universal Civil Code is a highly politicized matter. ये तो बस मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है. ऐसे आप बहुत सारे केसेस देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक. You must be seeing how politicized it is, कितना highly politicized matter है, right? And there have been many attempts in the past by the government of India to bring forward uniform civil code. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में तभी हो सकता है जब सारे के सारे जो इंडियन फैक्शंस हैं, राइट, सारे के सारे जो कम्युनिटीज है, जिस तरह से उन्होंने इंडिया का क्रिमिनल लॉज को एक्सेप्ट कर लिया है, उसी तरीके से उन्हें इंडिया का सिविल लॉज एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो दिस इज समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू शो that the matter and the time now is not yet right to fully implement uniform civil code throughout the territory of India. Okay, now let's go forward and understand what article 45 says. Okay, so now in article 41 हमने last class में discuss किया था कि article 41 gives us what is known as right to work, right to work एंड राइट टू एजुकेशन. आई एम श्योर आपने ये वाला पोर्शन पढ़ा होगा. अब ये वाला जो एजुकेशन आपका आर्टिकल 41 में बात हो रहा है, दिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एजुकेशन रिलेटेड टू वर्क. यानी कि आपका वोकेशनल ट्रेनिंग, इट्स टॉकिंग अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग, इट्स टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इट्स टॉकिंग अबाउट दीज टाइप ऑफ एजुकेशन. ओके, अच्छा, अब आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी एक चीज की बात कर रहा है. अब समझिएगा एक बात को. ये जो राइट टू एजुकेशन है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों डाला मैम? वोकेशनल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, ये इसलिए डाला गया बिकॉज स्टेट को ना अपने पॉकेट के हिसाब से अ स्टेट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, राइट? अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट के हिसाब से वो आपको राइट टू वर्क भी देगा और आपको उस चीज के लिए एजुकेट भी करेगा. वेरी गुड. ये तो हमें आर्टिकल 41 से समझ में आता है. अब आ जाइए आर्टिकल 45 में. व्हाट इज आर्टिकल 45 टेलिंग अस? आर्टिकल 45 में ना एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लगा हुआ है. देयर इज अ टाइप ऑफ अर्जेंसी दैट आर्टिकल 45 इज टेलिंग अस. तो ये बोलता है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड टू इट्स सिटीजंस विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years. मतलब देखो, ये सारी जो हमें इसके पहले जितनी भी एक्ट्स आपने पढ़ा होगा, उन सब में ये बोला गया है कि ठीक है, आप तब करना जब आपके पास पैसा आएगा, आप तब पैसे देना जब तब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड तब लाना जब आपको लगता है कि टाइम राइप है. आप है ना लोगों को इक्वालिटी तब देना जब आपके पास पैसे आएंगे. आप औरतों मर्दों को इक्वालिटी देना, बट अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स. हर चीज के साथ एक तरीके का कंडीशन अटैच किया है. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 45, इसने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दे दिया है कि देखो भाई, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होगा, उसके अंदर
within a period of 10 years आपको सारे kids को you have to give your children free and compulsory education, right, till the completion of the age of 14 years. इसका underlying spirit है, देखो the underlying spirit क्या है कि ये ना अर्जेंसी के साथ बता रहा है। इसमें क्या है, इन्होंने बड़े प्यार से टाइम को मेंशन कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, टाइम को मेंशन कर दिया है कि आपको 10 से 10 साल तक ये करना पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल का पूरा कहानी है, दिस इज टॉकिंग अबाउट ये दिट इज कंप्लीटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन। ये जो अर्जेंसी है इसे पूरी तरह से इंक्लाइन करवा दे रहा है टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स। तो आप लोगों ने आर्टिकल 21A के बारे में तो देखा ही होगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो Article 21 is talking about right to life with choice and dignity, right? क्या बोलता है, अगर आपको याद है मोहिनी जैन केस ऑफ 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है। राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लाइफ विथ व्हाट इज नोन एज चॉइस एंड राइट टू लाइफ विथ व्हाट इज नोन एज डिग्निटी। ओके, अब मोहिनी जैन केस इन द 1992 मोहिनी जैन केस सुप्रीम कोर्ट सेड, देखिए 1992 में मोहिनी जैन का एक केस हुआ था। ओके, और इस 1992 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो एजुकेशन है ना, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज कंडीशनल एजुकेशन। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने ये डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ये कंडीशनल एजुकेशन है, राइट। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डायरेक्टली बोला हुआ है कि भाई 10 इयर्स के अंदर आपको करना है। और अब जो है 1992 आ गया है और अब तक हमने ये देखा है कि प्रॉपर तरीके से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं किया गया है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे इन द ईयर 1993 इन द के उन्नी कृष्णन केस। In 1993 in the K उन्नी कृष्णन केस सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को अर्ज किया था, ठीक है, कि आपको जो है ना आप फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सारे के सारे बच्चों के लिए लेकर आना है। And it is because of this that the parliament passed what is known as the 86th constitutional amendment act and the 86th constitution। वो भी इतना होने के बाद भी आप देखोगे 2002 में ये केस पास हुआ था, ये अमेंडमेंट किया गया था। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 45 के तहत वी हैड व्हाट इज नोन एज आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गिव्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टिल द एज ऑफ 14 इयर्स, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एक राइट जो होता है इट इज द ओनली थिंग विच कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ, जैसा हमने अभी देखा कि भाई आर्टिकल 45 हमें ये बोलता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दो, राइट, एंड दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी जो है वो एक तरह का राइट है। बहुत बार ये वर्ड भी हमने करते हुए देख लिया। और फिर हमने देखा कि इस आर्टिकल को कंप्लीटली और इजीली पूरी तरीके से कन्वर्ट करके हमने बना दिया आर्टिकल 21A जो अब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि एक राइट जो है वही चेंज होकर वापस एक राइट बन सकता है, राइट। सो इन द ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे हमारे पास एक मैटर है, वी हैव आइस, तो आइस अगर गलेगा तो वो वाटर ही बनाएगा, राइट, और वाटर अगर जम जाएगा तो वो वापस से आइस ही बनाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये दोनों जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है दे ऑल आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, लाइक एक ही कॉइन के पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड अगेन, इसे समझने की कोशिश करो। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला था, उन्होंने आर्टिकल 21A को डाला था। ओके, परफेक्ट। मगर ये 2002 में आया था। अच्छा, बट व्हाट हैपेंड इज अप टिल 2009 ये जो एक्ट था इट वाज सस्पेंडेड। इसकी वजह से राइट टू एजुकेशन हैड नॉट कम इनटू द फोरफ्रंट, ठीक है। और 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 पास हुआ। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा कैसे हो गया, ये तो फंडामेंटल राइट था, इसे कैसे रोका गया। गाइज अगेन रिमेंबर the law is either black either white, so the fundamental right was not violated, it was not abridged and it was not contravened, it was done what, it was suspended। इसीलिए ये पूरी तरीके से लीगल बन गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो फोरफ्रंट में आया। चलिए इस पाथ को एक बार और ट्रेस कर लेते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 में
एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि भाई स्टेट को 10 इयर्स के अंदर, विद इन 10 इयर्स उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने 10 इयर्स के अंदर उन्हें सारे के सारे लोगों को एकदम, उन्हें दे हैव टू गिव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद इन 14 इयर्स। व्हाट हैपेंड टू दिस, 2 केस हुआ था मगर 10 इयर्स के अंदर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद आप क्या देखते हो, मोहिनी जैन केस आता है, राइट, द मोहिनी जैन केस आता है 1992 का, वहां वहां पर भी कुछ नहीं होता है। फिर आता है हमारा के उन्नी कृष्णन केस। के उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट अर्जेस द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट पासेस व्हाट इज नोन एज द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसे भी एंड 2021 ऑफ द ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स गेट्स इंसर्टेड, मगर 2009 तक ये सस्पेंडेड रहता है। एंड फाइनली 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2000 इज पास्ड। अब 2009 एंड ऑनवर्ड्स ये जो एक्ट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड what other articles are telling us. Now the next article, this is article 46. देखिए क्या रीड कर रहा है, the state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular the scheduled castes and the scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and forms of exploitation. अब आपको ये तो देखा होगा कि भाई ये जो एक्ट है, सिंपल सी बात है, इट इज डीलिंग विद शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और इन्हें बचाने के लिए आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारे रिजर्वेशंस हमें दिए हुए हैं, और इस रिजर्वेशंस के बारे हमने बहुत डिटेल में फंडामेंटल राइट्स वाले क्लास में कवर कर लिया है। सो इन केस यू स्टिल हैव अ डाउट कि हमने हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग आवर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, इसके लिए आप हमारा फंडामेंटल लॉ राइट्स वाला आर्टिकल देख सकते हो, जिसमें बहुत डिटेल में मैंने ये वाला पोर्शन कवर कर लिया है। ओके, सो दिस इज नॉट द आर्टिकल दैट आई विल डिस्कस अगेन, बट आर्टिकल 46, आपको इतना याद रखना है कि आर्टिकल 46 जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब आते हैं आर्टिकल 47 पे। देखिए आर्टिकल 47 क्या बोलता है, द स्टेट शैल रिगार्ड रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, लोगों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे इनका, भाई मैं क्या करूंगी, इन्हें मिड डे मील स्कीम दूंगी। ठीक है, आई विल गिव देम मिड डे मील्स, आई विल डू व्हाट इज नोन एज फूड फोर्टिफिकेशन, राइट, मैं फूड को फोर्टिफिकेशन करूंगी, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं, आई एम जस्ट मेंशनिंग सम। and the standard of living of its people, it will raise the standard of living of its people and improvement of public health among its primary duties. Okay, अच्छा भाई, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, मैं अपने पब्लिक हेल्थ को कैसे इंप्रूव करूंगी, मैं मिड डे मील दूंगी, मैं फूड फोर्टिफिकेशन करूंगी, मैं पल्स पोलियो कैंपेन चलाऊंगी, आप लोगों ने पोलियो कैंपेन सुना होगा, पल्स पोलियो, मैं आपका आयुष्मान भारत स्कीम करूंगी, मैं आशा आंगनवाड़ी बहन जी करूंगी, मैं आंगनवाड़ी करूंगी, मैं बहुत सारी चीजें करूंगी, मैं अपने स्टेट को बचाने के लिए सारी की सारी कोशिश करूंगी। ओके, एंड द स्टेट शैल, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे, इन पर्टिकुलर क्या चीज देखेगा हमारा स्टेट, इट शैल एंडेवर। ठीक है, एंडेवर मतलब विल ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, स्टेट कोशिश करेगा to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health। मतलब मैं कुछ लीगल तो नहीं कर सकता, मैं कोई ऐसा ड्रग जो नहीं है मैं लीगल नहीं कर सकता, मैं ड्रग्स और ड्रिंक्स तभी अलाउ कर सकता हूँ, आई विल अलाउ ड्रग्स ओनली व्हेन दे आर फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड नथिंग एल्स। ओके, अच्छा अब आप देखो आर्टिकल 46 को आप देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेट शैल प्रमोट, मतलब तुम्हें करना ही है, यू द स्टेट हैज टू डू दिस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 47, वो आप ट्राई करो कि आप ड्रिंक्स को और ड्रग्स को बंद करने की कोशिश करो। Now let me tell you some of the recent cases जो आपने definitely सुना होगा, and let's relate it to some recent events. Okay, okay. अच्छा, many of you must have heard the concept of a dry state. तो recently आपको पता होगा कि गुजरात is a dry state and बिहार is a dry state. अब समझिएगा मेरी बात को, नीतीश कुमार जी
became the prime minister, became the chief minister of Bihar, right? Nitish Kumar was the chief minister of Bihar. Perfect. सबको ये बात पता होगा. नीतीश कुमार ने क्या किया था? 1 अप्रैल 2016 में एक एक्ट पास किया और इस एक्ट में इन्होंने, दिस एक्ट वाज नोन एज द बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट. बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट. ना बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट से उन्होंने बड़े प्यार से लिकर को बैन कर दिया. ही उन्होंने बोला आज के बाद से बिहार में ना कोई लिकर बटेगी, ना कोई लिकर पिएगा, ना कोई लिकर चलेगा. So he banned all forms of liquor that he found it that were there in Bihar. Okay. और ये जो बैन को उन्होंने किया, उन्होंने साथ में बोला अगर हम किसी को दारू पीते हुए देख लेंगे या हम किसी को ड्रग्स या अल्कोहल लेते हुए देख लेंगे, that will be what is known as a punishable offense. That is a punishable offense. Okay. अच्छा, तो इन्होंने ये वाला एक्ट कहाँ से निकाला था? आराम से समझने की कोशिश करो. यू पीपल मस्ट हैव हर्ड ऑफ द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट. समझिएगा मेरी बात को. 1949 में देयर वाज समथिंग व्हिच वाज नोन एज द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट. ठीक है. और सिमिलरली बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो था 1949 का, दैट वाज एक्सटेंडेड टू गुजरात. और आप गुजरात में भी देखोगे कि लिकर बैन हो गया. ठीक है. गुजरात में प्रॉपर तरीके से लिकर बैन हो गया. उसके बाद इंडिया में क्या है समझने की कोशिश करो. नारकोटिक, देयर इज अ पर्टिकुलर एक्ट व्हिच इज नोन एज द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस प्रोहिबिशन एक्ट. let me write it down for you. So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको 3 केसेस बता रही हूँ. नंबर 1 आप नीतीश कुमार का केस देख लीजिए, बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट. फिर आप बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट देख लीजिए, राइट. यू लुक एट द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, लिकर प्रोहिबिशन एक्ट. और उसके बाद आप देख लीजिए द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस प्रोहिबिशन एक्ट. ओके. तो ये सारे एक्ट्स ने क्या किया, इंडिया में किसी तरीके का लिकर और किसी तरीके का जो ड्रग्स है वो यूज करना बंद कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आर्टिकल 47 में तो ये दिया हुआ है कि भाई जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है या जो हमारा स्टेट है या जो हमारा गवर्नमेंट है, इट शुड बैन लिकर. मगर हमारे पास है आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 क्या कहता है गाइस, कि यू शुड लिव लाइफ विथ चॉइस एंड विथ व्हाट इज नोन एज डिग्निटी. तो अगर मेरे पास जीने का चॉइस है एंड से आई वांट टू ड्रिंक लिकर, मुझे अल्कोहल ड्रिंक करना है, तो मुझे क्यों आप रोकोगे? व्हाई शुड यू स्टॉप मी? यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी. तो एक तरीके से अगर आप देखो, आर्टिकल 21 इज क्लैशिंग विद व्हाट इज नोन एज आर्टिकल 47. आर्टिकल 47 जो है वो आर्टिकल 21 के साथ पूरी तरीके से क्लैश कर रही है. ठीक है. तो अब सवाल ये आता है कि क्या हम लिकर बैन कर सकते हैं या नहीं. तो ये जो मैटर है गाइस, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है. इन केस ऑफ नीतीश कुमार के इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गया था ये मैटर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर अभी पेंडिंग करके रख दिया है. अभी तक उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आपने बैन किया है, इस बैन को एनफोर्स्ड रहने दीजिए until you get further information from us. All right. So this was all about Article 47. So in the next video, we will be covering Article 48, Article 49, 48A, Article 49, 50, and 51. After which we will be covering fundamental rights. So guys, I hope you enjoyed this video today. Thank you for watching. Have a great day. Bye bye.